आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमजा कलेक्शन, सुप्रीम गारमेंट, सुप्रीम गारमेंट, ग्लोबल वॉलपेपर, मन्नत इंटरप्राइज। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम तरीन खबरों के साथ। आसनसोल उत्सव का इफ्तिताह कल दिया जलाकर वजीर मलाय घटक, MP शत्रुघ्न सिन्हा, मेयर विधान उपाध्याय और दिगर मेहमानों ने मुश्तरका तौर पर किया। आपको बता दें कि 11 नवंबर से 20 नवंबर तक ये उत्सव चलेगा। इस मौके पर दुर्गापुर के एडमिनिस्ट्रेटर, जिला सभाधिपति, डिप्टी मेयर वसीम उल हक और अभिजीत घटक व डॉक्टर संदीप घटक खास तौर से मौजूद थे। इस उत्सव में मुख्तलिफ तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। नीचे हाथ का नीचे ये तो अभी मैडम साइडे ये तो কোথাও অসুবিধা বসে আপনি নামাজ আসবেন। আপনি আমাদের পক্ষ থেকে বরণ করে দেবেন দুর্গাপুরের পূর্ব নিগমের প্রশাসক নামাজ আসবেন। আমাদের পক্ষ থেকে সুরজ কুমার সাহা করছে শুভঙ্কর প্রশ্নকার যে মঞ্চে আসবেন তিনি আমাদের পক্ষ থেকে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের সদস্য তাকে দেওয়া হয়েছে। শুভ সূচনা পবিত্র জড়িত হচ্ছে বন্ধুরা, খুব জোরে হাত তালি দিয়ে একসময় সকলে মিলে এটি একটি স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের কাছে। আসানসোল উৎসবের আমরা গড়ে তুলছি, নাম দিয়েছি ইকো পার্ক, হয়তো দেখবেন। এবং সমস্ত কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেল, এখনো বিদ্যুতের কাজ শেষ হয়নি। এখন বোধহয় অনিমেষ বলছিল টেম্পোরারি লাইট লাগানো হয়েছে। এই অঞ্চলের যারা বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আছেন, যারা কচিকাচার দলেরা আছেন, আমাদের এই শহরের দিকে একটা ভালো পার্ক ছিল না, সেই পার্কটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি। এই শহরে আমাদের এই শহরের একটা ইউনিভার্সিটি আমরা পাবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আমাদের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে। একটা মহকুমা হাসপাতাল ছিল, সেই হাসপাতালটাকে জেলা হাসপাতালের উপর থেকেই আসানসোলের মানুষের যে চাহিদা, সময় এলেই মনে কয়েকশো ফোন আসে যে দাদা এবারে আসানসোল উৎসবটা কবে থেকে হবে, কে কে আসছেন এবারে। এই যে আসানসোলের মানুষের উৎসাহ, সেই উৎসাহকে উদ্দীপনায় আকৃষ্ট হয়ে কিন্তু আমরা এই আসানসোল উৎসব অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও এবার আমরা করেছি। এবং এবার অনেক নামজাদা খ্যাতনামা শিল্পীরা তারা এই মঞ্চে আগামী আজ থেকেই তারা আসানসোলবাসীর কাছে গান গাইবেন, প্রদর্শন করবেন এবং আসানসোলবাসীর মনোরঞ্জন করবেন। আসানসোল উৎসব কমিটি প্রথমে আমরা যেটা তৈরি করেছিলাম, পরবর্তীকালে সোসাইটির রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী আমরা সেটা সোসাইটিতে রূপান্তরিত করেছি। এবং আমি আসানসোল উৎসব কমিটিতে যারা আছেন তাদেরকে বলবো, খালি আসানসোল উৎসব 10 দিন করলে হবে না। এই বছর থেকে যদি আমরা পয়লা বৈশাখে বর্ষবরণ উৎসব করতে পারি, 25শে বৈশাখে রবীন্দ্র জয়ন্তী করতে পারি, তাহলে বোধহয় আমরা
আসানসোল উৎসবের মাধ্যমে আসানসোলের মানুষের কাছে আরো বেশি সাংস্কৃতিক কাজকর্ম পৌঁছে দিতে পারবে। লিডারশিপ অফ দ্য গ্রেট লিডার মমতা ব্যানার্জি, যার উৎসব হচ্ছে এখানে, ওই জায়গায় আমি স্পেশালি এসেছি ওপেন করতে, মুম্বাই দিল্লি থেকে এখানে এসেছি। আর থ্যাংক ইউ, আমি এখানেই ছিলাম 4-6 দিন আগে আমি এখানে ছিলাম, ছটের জন্য তার আগে আমি এখানে ছিলাম, দুর্গাপূজাতে পুজোতে আমি ছিলাম 10-15 ডে এখানে প্রত্যেক মাস হয়। আমার ফ্যামিলি, আসানসোল আমার ফ্যামিলি, and today I have come over here and a great occasion, इतना बढ़िया ओकेजन है ये। जैसे हरिराम जी ने कहा कि कॉस्मोपॉलिटन है, पूरा हिंदुस्तान है यहाँ पे आसनसोल में। और सबसे बढ़िया बात मुझे आसनसोल की लगती है, जो गेट पे लिखा है, गेट ऑफ आसनसोल पे, सिटी ऑफ ब्रदरहुड, यही पूरे देश में होना चाहिए। ये पूरे देश में होना चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, देश का गौरव होना चाहिए, प्रदेश का नाम होना चाहिए, ममता बनर्जी की जय जयकार होनी चाहिए, यही होना चाहिए। और यहाँ पे सिटी ऑफ ब्रदरहुड है। आज हम ये उत्सव मना रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 10 साल 8 साल, सही मायने में 6 साल से उसको मनाया गया है। बीच में यहाँ पे कोरोना का प्रकोप था, उसकी वजह से अपने परिवार का ख्याल रखते हुए, सेहत का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने ये उत्सव नहीं मनाया था। अब मैं आपके सामने आया हूं और ये याद करता हूं उत्सव के साथ साथ एक तरफ एकता को याद करता हूं, पूरे हिंदुस्तान को याद करता हूं, सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को याद करता हूं, सारे हॉस्पिटल्स के जो लोग आए हैं प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए, उनको याद करता हूं, उनकी हौसला अफजाई करता हूं। जितने स्टॉल लेके आ रहे हैं, जितने लोगों को रोजगार मिलती है और जितने लोगों को रोजगार मिलेगी, उनको याद करता हूं, उनकी हौसला अफजाई करता हूं। वहीं दूसरी तरफ कहना चाहिए था पहली तरफ ही, लेकिन अब जो मैं कह दिया है फ्लो में, तो दूसरी तरफ जो कि पहली तरफ होगा, मैं याद करता हूं महान ऋषि अरविंदो घोष की जन्म शताब्दी को, याद करता हूं भारत के सबसे बड़े हीरो सन ऑफ द सॉइल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, याद करता हूं मैं आज के दिन हमारे फाउंडर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम मिशनरी, जहां की स्कूलिंग, मेरी सबसे पहले स्कूलिंग रामकृष्ण मिशन आश्रम से ही शुरू हुई थी। उन्हें याद करता हूं, प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं एक तरफ महागुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि को, नजरुल इस्लाम की भूमि को, वहीं दूसरी तरफ मैं याद करता हूं भारत के महान कलाकार, अभूतपूर्व कलाकार, ऐसा कलाकार, बेजोड़ कलाकार, ऐसा कलाकार जिसकी आज तक पूर्ति नहीं हुई, वो बंगाल के महान कलाकार, हिंदुस्तान का गौरव रवि घोष दादा को। रवि घोष जी के 100 साल हुए हैं अभी। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आनंद मैरिज एक्ट की बात को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया। तेजिंदर सिंह बल ने कहा कि जिस तरह बाकियों के मजहब में मैरिज एक्ट है, उस तरह से हमारे यहाँ कोई एक्ट नहीं है। हमें शादी के दस्तावेज पर हिंदू लिखा जाता है। ज्यादा जानकारी देते हुए यहाँ बताया गया कि 2012 में आनंद मैरिज एक्ट मरकजी सरकार ने पास किया था, जिसके तहत अब कई स्टेट्स में ये लागू हुआ। पर यहाँ आपको बता दें कि पंजाब में अभी भी ये एक्ट पास नहीं है। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के सदर मनमोहन सिंह, सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह मौजूद थे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर और हमारे पूरे पश्चिम बंगाल की
सिख संगत की तरफ से आप सभी का यहाँ पर पहुँचने में हमारी तरफ से बहुत आभार और आपका धन्यवाद। मैं आपका सबसे परिचय करा दूँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर के हमारे मुख्य सेवादार सरदार मनमोहन सिंह जी और हमारे दुर्गापुर के जगत सुधार गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार सरदार तजेंद्र सिंह जी बल और हमारे आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और गुरु नानक हमारे मिशन हाई स्कूल के सेक्रेटरी साहब सरदार मनदीप सिंह जी यहाँ उपस्थित है। और हम लोग ज़्यादा वक्त आपका ना लें, प्रेस वार्ता जो आज हमारी बड़ी ही हमारे लिए स्वाभिमान और मान वाला दिन है कि हमारे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हमारी जो मांग करीब 3-4 सालों से हम इस मुहिम को लेके चल रहे थे, जो आनंद मैरिज एक्ट को लागू करवाने के लिए पश्चिम बंगाल की धरती पे, वो हमारा जो हमारी मांग थी वो हमारी पश्चिम बंगाल सरकार ने सुनकर मांग को पूरा किया है। हम पूरी पश्चिम बंगाल सरकार का धन्यवाद करेंगे, पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से हमारे पश्चिम बंगाल की। और आगे की जो वार्ता है, मैं चाहूँगा कि हमारे दुर्गापुर गुरुद्वारा जगत सुधार के मुख्य सेवादार सरदार तजेंद्र सिंह जी बल और हमारे बड़े ही सत्कार जो हमारे बड़े भाई सरदार मनदीप सिंह जी आगे की प्रेस को सारी जानकारी देंगे। ये तय किया था कि जो सिखों की अपनी आइडेंटिटी का जो खतरा था हम लोगों को, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे हमारे आइडेंटिटी प्रूफ अभी सरकार से मान्यता प्राप्त आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड में रिलीजन में हम लोगों को सिख लिखा जाता है। लेकिन जब हमारे जो बच्चे हैं या हमारी संस्था के या हमारे समाज के जो लोग विदेश यात्रा करते हैं, जब वो अपना पासपोर्ट बनाने जाते हैं और वहाँ पर शादीशुदा होने के कारण जब अपना मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो उस मैरिज सर्टिफिकेट में हम लोगों का सिखों को हिंदू लिखा जाता है, क्योंकि हम लोगों का अलग से कोई भी मैरिज एक्ट नहीं था सिखों का। जैसे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इसी तरह हमारे सिखों का अलग से कोई मैरिज एक्ट नहीं था। और हमारी केंद्र की सरकार ने और अंग्रेज़ों ने उससे पहले 1909 में ये आनंद मैरिज एक्ट बना था और अंग्रेज़ों ने लागू करते करते जब वो हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये मांग तूल पकड़ी कि सिखों की जो आइडेंटिटी का जो सवाल है इसको पूरा किया जाए और हम लोगों को पूर्ण जो है हमारी आइडेंटिटी सिख होने के नाते हर तरह के सरकारी कागज़ों में हमें प्रदान की जाए। तो 2012 में ये आनंद मैरिज एक्ट केंद्र की सरकार ने पास किया विद अमेंडमेंट, और इसको तय करने के बाद ये कहा गया कि बाकी सब स्टेट जो है अपने अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अपने अपने स्टेट में इस आनंद मैरिज एक्ट को लागू करें। लेकिन कुछ स्टेटों ने किया। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 22 स्टेटों में लागू हो चुका है और हमारी पश्चिमी बंगाल अग्रणी श्रेणी में आती है। लागू करने में हमारे बगल के राज्य झारखंड में भी लागू है और पंजाब में कुछ वजह से ये लागू नहीं हो पाया अभी तक। उनका 2016 में जो रूल रेगुलेशन थे वो फ्रेम हो चुके थे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हो पाया, इसलिए अभी पंजाब भी इससे दूर है। अभी पंजाब में ये आनंद मैरिज एक्ट लागू नहीं हुआ है, लेकिन अभी की जो सरकार है कि वहाँ की स्टेट की, वो तत्पर है और काफ़ी ज़ोरों से प्रयास कर रही है। हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये वहाँ भी लागू हो जाए। पर पंजाब से भी पहल करने में हमारे बंगाल के सिख समुदाय के लोग जो यहाँ पर जिन्होंने इस आंदोलन को जन आंदोलन बना करके ये आनंद मैरिज एक्ट बंगाल में लागू करने की कोशिश की, और हमारी सहयोगिता से यहाँ की स्टेट की सरकार ने, हमारे विशेष करके जो कानून मंत्री हैं श्री मलय घटक जी, उन्होंने इस बात को बहुत तवज्जो देकर, पहल दे करके इसको रूल रेगुलेशन फ्रेम करने में हमारे सिख समुदाय की जो उनका सहयोग और उनका जो एडवाइस है, हम लोगों से हर तरह से उन्होंने एडवाइस मांगी। हम लोगों से उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंगें जो है, जो कानून मंत्रालय का जो ऑफिस है राइटर्स बिल्डिंग में, वहाँ हमें निमंत्रित करके बुला करके ये सारी चीज़ को संपूर्ण किया। और पिछली 2 नवंबर को ये नोटिफिकेशन और अप्रूवल हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है। तो 2 नवंबर को अप्रूव होने के बाद अभी सारे जो कानून है उस पर हमारे सिख संप्रदाय की पिछली कल जो मीटिंग थी राइटर्स बिल्डिंग में, वहाँ पर हम लोगों से भी उन्होंने अप्रूवल लिया है। सभी जो ड्राफ्ट थे ये रूल रेगुलेशन के, कानून के जो इसके छोटे छोटे पहलू थे, उन सब पे हमारी सहमति ली है
और आने वाले अगले हफ्ते में इसका नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ जैसे ही नोटिफाई हो जाएगा ये कानून, तो ये कानून की शक्ल ले लेगा। अब आने वाले दिनों में हम लोगों का जो विवाह जो होता है सिख संप्रदाय का, जो हमारे सिख रीति रिवाज के मुताबिक उसको मान्यता मिल जाएगी और हमारी आइडेंटिटी एज ए सिख हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में लिखी जाएगी। और इसकी एक न्यूनतम फीस जो है वो सरकार ने लागू की है, उसमें भी हम लोगों का जो है उन्होंने एडवाइस ले करके इसको बार्गेन करके बहुत कम मतलब पैसों में ये सर्टिफिकेट प्रदान करने की जो प्रक्रिया है इसको संपन्न किया। तो हम तहे दिल से हमारे कानून मंत्री श्री मलय घटक जी, जिन्होंने इसमें पहल करके अपनी खुद बहुत अनथक प्रयास करके इसको लागू करने में और संपन्न करने में और कंप्लीट करने में अपना सहयोग दिया, और विशेष करके बंगाल सरकार का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और विशेष धन्यवाद बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिन्होंने इस मांग को सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल की संगत को साथ में लेकर के शुरू किया था। और जैसे ही इन्होंने इस मांग को शुरू किया तो अगल बगल जहाँ भी यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल की सिख संगत ने इनका साथ दिया है, और सभी का साथ देने के लिए और बनपुर कमेटी का इस मामले को, इस मुद्दे को उठाने के लिए हम लोग सिख संप्रदाय की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। कहते हैं कि अपनी जमीन, अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत एंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बनपुर कालाझरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबीनगर, लावाघंटी, पाइपलाइन रोड, प्लॉट 4 सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250259567। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल।
ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। আসানসোলের সংসদ ভবনে শত্রু ঘোষণা পাওয়া যায় বন্ধুরা খুব জোরে করতালি দিয়ে স্বাগত জানাতে তাকে আসানসোল উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে আমাদের আসানসোলের সাংসদ শত্রু ঘোষণা পাওয়া যায় এই মুহূর্তে আহ্বান জানাই মাননীয় সাংসদ শত্রু ঘোষণা পাওয়া যায় এই মুহূর্তে মঞ্চে বসেছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আসানসোল উৎসবের এই উদ্বোধনের মুহূর্তে আজকে তাকে আমরা পেয়েছি। ক্যাশটাই পেলাম না, ক্যাশটা পেয়ে এসে দিতে দেবো আমি এটা শুরু করে ভাই ছুটছো না একটু পেছনে একটু ইয়ে নেই। মাননীয় সাংসদ শত্রু ঘোষণা পাওয়া যায় এই মুহূর্তে আমাদের মঞ্চে বসেছে। এটি আমাদের খবর প্রার্থী বরণ করেছেন মাননীয় ইন্দ্রাণী ইসরো যিনি আমাদের আসানসোল মেয়র পরিষদ সদস্য শ্রী মানুষ দাস, তাকে বরণ করবেন আসানসোল উৎসবের শুভসূচনা প্রতিকূল জড়িত হচ্ছে বন্ধুরা খুব জোরে হাত তালি দিয়ে এই সময় সকলে দিবে। এটি একটি স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের কাছে আসানসোল উৎসবের शुरू किया है। तभी से लोग जानते हैं कि आसनसोल में उत्सव भी होता है और आसनसोल भी कोई जगह है। इसके लिए मैं दादा को भी धन्यवाद देता हूँ। आज काम तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नेत्री का आदेश है कि और काम ही नहीं करना है, उत्सव के द्वारा भी लोगों को एक साथ जोड़ना। और आसनसोल तो मेरी भारत है, सभी संप्रदाय सभी जात के लोग एक साथ एक रहते हैं और मिलजुल करके रहते हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों को बहनों को नमस्कार करता हूं। और 10 दिन का प्रोग्राम है, आसनसोल उत्सव चलेगा, विभिन्न दिन विभिन्न तरह के कलाकार आएंगे। उसका मेरे तरफ से धन्यवाद। आप लोग सभी उपस्थित हुए और मंच पर जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे अग्रजन हैं, सबको मैं नमस्कार करते हुए वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ধন্যবাদ। এবারে আমি অনুরোধ করব মাননীয় শ্রী নরেন্দ্রনাথ চক্র চেয়ারপারসনকে পর্যন্ত তার যে গান দর্শকদিকে মাতি দিয়ে গেলেন এটা সঞ্চালকের জন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকের এই অনুষ্ঠানে যিনি প্রাণ পুরুষ ম্যানেজমেন্টের সাথে বসে যার নেতৃত্বে আমরা এরকম একটা উৎসব পেয়েছি, মাননীয় মন্ত্রী পশ্চিম বর্ধমান জেলার অভিভাবক মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয়, তাকে প্রণাম জানাই, স্বাগত জানাই। মঞ্চে আছেন কিংবদন্তি। গত 2 বছর কোভিডের জন্য আমরা এই উৎসবটা পাইনি, আমরা মিস করেছি উৎসবটাকে। আমি ধন্যবাদ নয়, মানে আমাদের সকলে আমরা কৃতজ্ঞ যে এই ধরনের উৎসব একটা আসানসোলে হচ্ছে এবং যেটা একদম প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার দ্বারা হচ্ছে, আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের মহিলা আছে, উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের প্রিয়, একটু আগে বলছিলেন আমাদের স্বপ্নের নায়ক যিনি, মানে আমরা দাদাকে দেখার পর আমাদের পাশে বসছি, মানে চা খাচ্ছি, গল্প করছি, মানে বিশ্বাস হয় না যে আমরা বসে আছি। তো সত্যিকারে এটার জন্য ধন্যবাদ দিদিকে, যে দিদি এখানে পাঠিয়েছেন আমাদের শত্রুঘ্নদাকে আমার প্রণাম করলাম।
উপস্থিত আছেন আমাদের দুই বিধায়ক নরেন্দা এবং হররাম জেঠা। উপস্থিত আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভদ্রাদি এবং উপস্থিত আছে আমাদের দুই ডেপুটি মেয়র আসানসোল কর্পোরেশনের বন্ধু অভিজিৎ এবং ওয়াসিমুল হক। উপস্থিত আছে সমস্ত কর্পোরেশনের সমস্ত এমআইসি সমস্ত সদস্যরা। উপস্থিত আছে বিশিষ্ট শিল্পপতিরা এবং আমরা গড়ে তুলছি, নাম দিয়েছি ইকো পার্ক, হয়তো দেখবেন। এবং সমস্ত কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেল, এখনো বিদ্যুতের কাজ শেষ হয়নি। এখন বোধহয় অনিমেষ বলছিল টেম্পোরারি লাইট লাগানো হয়েছে। এই অঞ্চলের যারা বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আছেন, যারা কচি কাচার তলেরা আছেন, আমাদের এই শহরের দুটো একটা ভালো পার্ক ছিল না, সেই পার্কটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি। এই শহরে আমাদের এই শহরের একটা ইউনিভার্সিটি আমরা পাবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আমাদের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন। একটা মহকুমা হাসপাতাল ছিল, সেই হাসপাতালটাকে জেলা হাসপাতাল। ম্যাজিক ম্যান মনে ঘটেন বাবু, মনে ঘটেন বাবু আমার ছোট ভাই। এইখানে ছোট ঘটক আমার ছোট ভাই ডেপুটি মেয়র, উনি বসে আছেন, ওয়াসিমুল হক বসে আছেন। আমাদের দুর্গাপুরের মহাপৌর মিসেস মুখার্জি ওনার সঙ্গে বসে আছেন। আমাদের সুভদ্রাজি উনি 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 আছেন এখানে। আর কে আছে? দমদার, শানদার, জানদার, হরে রাম সিং, এত পপুলার এমএলএ আছেন। আমাদের লিডার নরেন বাবু উনি ম্যাজিক ক্রিয়েট করতে পারেন, নরেন বাবু করেছেন। ওনার সঙ্গে বসে আছেন আমার ভাই এইখানের মেয়র সঙ্গে উনি এত পপুলার লিডার। বিধান হচ্ছেন the most worthy son of the most worthy father of the great মানিক বাবুর ছেলে রকেট বাবু এখানে বসে আছেন। আমাকে একটু কাগজ দিয়ে গেছেন, আপনি নামটা নোট করুন, এইসব নাম বলবেন আপনার। রকেট বাবু, কাগজের দরকার নেই, আমি সব মনে আছে। এখানে আমার কম্পিউটার আছে। আমাকে সব ভাই বলে শকুন্তলা দেবীর ভাই আমি হচ্ছি। একবার এখানে হয়ে গেল, সবার নাম নিয়েছি আমি, ওয়াসিমুল হকের নাম নিয়েছি, অভিজিৎ ঘটকের নাম নিয়েছি, ওনার নাম আমি ভুলে গেছি শুধু। সন্দীপ ঘটক মেজরিটি আছে এখানে, ঘটকের মেজরিটি আছে। সন্দীপ ঘটক, ঠিক আছে, ভেরি গুড। সব ভাই বসে আছেন, আমার একটা বন্ধু বসে। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज।